Hello friends, yesterday we learned 7th class English story Teeny Tiny, and in this lecture we are going to solve our exercise English workshop of the Teeny Tiny. In the English workshop, let's read first question. Describe the teeny tiny woman's house using details from the story and your imagination. अब क्या करो, टीनी टाइनी वुमन जो थी उसका जो हाउस था, तो उस हाउस का आपकी कल्पना शक्ति से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखो, डिटेल लिखो. तो इसका उत्तर है The teeny tiny woman had a very small house. It was suitable for the teeny tiny woman. वो इतना छोटा था कि उस teeny tiny woman के लिए बहुत suitable, योग्य था. The stairs of her house were very small. उसकी जो सीढ़ियाँ थी उसके घर में वो भी छोटी थी. Her bed वो भी छोटा था. Cupboard छोटा था. And other things in her small house were very small. बहुत छोटी छोटी चीज़ें थीं. हर क्लोथ्स टू वेयर टीनी. उसके क्लोथ्स कपड़े भी बहुत छोटे थे. तो ये उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखो. नाउ लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. तो इसमें फर्स्ट, द टीनी टाइनी वुमन लिव्ड इन अ टीनी टाइनी हाउस. हाउस HOUSE. ओके, टीनी टाइनी हाउस फर्स्ट का. Second, the teeny tiny woman went out. The teeny tiny woman went out to take a teeny tiny walk. Teeny tiny walk. WALK. सेकेंड का ये टीनी टाइनी वॉक. ओके, द टीनी टाइनी वुमन वेंट आउट टू टेक अ टीनी टाइनी वॉक. थर्ड, द टीनी टाइनी वुमन वेंट इनटू अ टीनी टाइनी चर्चयार्ड. CHURCHYARD. चर्चयार्ड. थर्ड का चर्चयार्ड, ये थर्ड का है. तो 3 हो गए. नाउ फोर्थ, the teeny tiny woman found a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. The teeny tiny woman found a teeny tiny bone. 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 यहाँ 2 रिक्त जगह दी है उन्होंने. The teeny tiny woman found a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. 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 टीनी टाइनी ग्रेव. फोर्थ का हो गया ये फोर्थ का है. ठीक है. नाउ फिफ्थ का, द टीनी टाइनी वुमन पुट द टीनी टाइनी बोन इनटू हर टीनी टाइनी पॉकेट. पहला इसका भी आएगा बोन. यहाँ भी 2 रिक्त जगह दी है उन्होंने, 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं.
The teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket. P-O-C-K-E-T पॉकेट। यह है फिफ्थ का। ठीक है, फिफ्थ हो गए। नाउ सिक्स्थ। The teeny tiny woman went home. The teeny tiny woman went home and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. Okay? तो यहाँ भी दो रिक्त जगह दी है, तो इसका आता है The teeny tiny woman went home and put the teeny tiny bone, B-O-N-E, bone, into a teeny tiny cupboard, C-O-U-P-B-O-A-R-D. Okay, cupboard. Okay, now seventh. The teeny tiny woman was awakened by a teeny tiny dash dash from the teeny tiny dash dash. तो इसके भी दो है, फिर इन द ब्लैंक्स, दो ब्लैंक्स दिए हैं यहाँ। The teeny tiny woman was awakened by a teeny tiny voice, V-O-I-C-E. Okay, teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard, C-O-U-P-B-O-A-R-D, cupboard. Okay, teeny tiny cupboard. Now at the teeny tiny woman was teeny tiny bit frightened. तो आप लिख सकते हो teeny tiny bit frightened, F-R-I-G-H-T-N-E-D, frightened, teeny tiny bit frightened. Okay, the teeny tiny woman was teeny tiny bit frightened. Or last, the teeny tiny woman said in her dash dash teeny tiny voice. तो इसका आएगा loudest, L-O-U-D-E-S-T, loudest. The teeny tiny woman said in her loudest teeny tiny voice. तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन finished. Now we have to turn to 3. The word teeny tiny is compound word, that is a word made of two words. तो ये जो compound word है मतलब जुड़ा हुआ शब्द है, दो शब्द जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही वर्ड हमको बनाने हैं। वर्ड लाइक टीनी टाइनी आर मोस्ट यूज्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज, चिल्ड्रन स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, फोक्स टेल्स, राइट अदर वर्ड्स लाइक टीनी टाइनी। ओके, तो ये भी इन्होंने हमको 8 वर्ड दिए हैं, तो उसके आगे के वर्ड हमको लिखने हैं। इंसी, विंसी, टिक टॉक, फ्लिप फ्लैप, हिकरी डिकरी, चिट चैट, क्रिस क्रॉस, डिंग डोंग, बाउ वाउ। तो ये आप आंसर देख सकते हो। इंसी, विंसी, टिक टॉक, फ्लिप फ्लैप, हिकरी डिकरी,
चिट चैट, क्रिस क्रॉस, डिंग डोंग, बऊ वाओ। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ टर्न टू फोर्थ। Use the list of adjectives you have made in the activity on page number 44. See if you can write funny meaningful sentences using one or more of these adjectives. For example, उन्होंने हमको 2 सेंटेंस करके दिए हैं, वैसे और 2 सेंटेंस हमको करने हैं। उन्होंने क्या करके दिए हैं देखो। A big red ant found a big red grain of corn in big red house. दूसरा किया है द लिटल सिल्वर फेरी कट द लिटल सिल्वर पेपर विथ लिटल सिल्वर सीसर। तो ये देखो लिटल सिल्वर है ना, लिटल सिल्वर रिवाइज हुआ है। ऊपर के सेंटेंस में अ बिग रेड, अ बिग रेड, अ बिग रेड ऐसे रिवाइज हुआ है। तो हमको ये 2 सेंटेंस इसके बनाने हैं। तो उसका आंसर आप लिख सकते हो। A small green parrot found a small green chili in a small green plant. Okay, a small green parrot found a small green chili in a small green plant. इसमें small green ये रिवाइज हुआ है। दूसरा सेंटेंस a fat round pig. A fat round pig ate a fat round pumpkin from a fat round basket. तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। नाउ टर्न टू 5th। थिंक ऑफ अ रिपीटेटिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमन फ्रॉम योर मदर टंग। आपने वो स्टोरी सुनी होगी है ना। वो ओल्ड वुमन रहती है एक छोटी सी, वो अपने डॉटर के घर जाती है। चल रे भोपड़िया टुनुक टुनुक। ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये स्टोरी आप मराठी में से इंग्लिश में करो। आती है करने तो करो, ठीक है। क्या करके दूँ? ठीक है, देखो आप सिर्फ लिखो, दी है मैंने करके इंग्लिश में। इन ओल्ड टाइम्स देयर वॉज एन ओल्ड वुमन। एक बूढ़ी औरत रहती थी। शी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वो जंगल में रहती थी। एंड शी हैड अ डॉटर। उसको एक कन्या थी, लड़की थी। बट हर डॉटर वॉज ग्रोन एंड लिव्ड इन हर हस्बैंड्स होम। वो बच्ची बड़ी हो गई, उसकी जो लड़की थी वो बड़ी हो गई और अपने हस्बैंड्स के संग रहने लगी। द होम वॉज वेरी फार अवे। उसका घर बहुत दूर था। वन डे शी वॉन्टेड टू गो टू हर होम। एक दिन उस बूढ़े औरत ने सोचा कि चलो मैं अपने लड़की के यहाँ जाके आती हूँ। शी मेड अ गिफ्ट फॉर हर डॉटर एंड शी लेफ्ट टू गो टू हर डॉटर्स होम। उसने एक गिफ्ट तैयार किया उसकी बच्ची को देने के लिए, उसकी लड़की को देने के लिए। एंड वो अपने लड़की के घर को जाने के लिए रवाना हो गई। शी वॉकड एंड वॉकड। चलती रही एंड सडनली अचानक से शी सॉ अ वुल्फ इन हर वे। उसने एक वुल्फ देखा। द वुल्फ सेड आई वॉन्ट टू ईट यू। मैं तुझे खाना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमन सेड डोंट ईट मी। वो बूढ़ी औरत बोली मुझे मत खा। आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स होम। मैं मेरे लड़की के घर जा रही हूँ। देयर आई विल ईट फूड। मैं वहाँ जाके बहुत खाऊंगी। आई विल बी फैट। मैं जाड़ी बन जाऊंगी। यू शुड ईट मी ऑन द वे होम। फिर तुमको जब मैं वापस आऊँगी तो खा। द वुल्फ सेड ओके गो। तो वो जो वुल्फ था वो बोला ठीक है जा। द ओल्ड वुमन वॉकड एंड वॉकड। वो चलती गई। सडनली शी सॉ अ लॉयन इन हर वे। फिर उसने एक लॉयन देखा। द लॉयन सेड, लॉयन बोला आई वॉन्ट टू ईट यू।
मैं तुझको खाना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमन सेड, डोंट ईट मी, मुझको मत खा। आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स होम, देयर आई विल ईट फूड एंड आई विल बी फैट, यू शुड ईट मी ऑन द वे होम, जब मैं वापस आऊँगी तब मुझको खा। द लॉयन सेड, ओके गो, वो भी बोला गो। शी फिर वॉक, और फिर वो चलने लगी। शी वॉकड एंड सडनली शी सॉ अ टाइगर इन हर वे। द टाइगर सेड, आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुझको खाना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमन सेड, डोंट ईट मी, मुझको मत खा। आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स होम, मैं मेरे लड़की के यहाँ जा रही हूँ। देयर आई विल ईट फूड, मैं वहाँ के जाके बहुत खाऊंगी। आई विल बी फैट, झाड़ी बन जाऊंगी। यू शुड ईट मी ऑन वे होम, जब मैं वापस आऊँगी तो तू मुझको खा सकता है। तो टाइगर सेड, ओके गो, ठीक है जा। सो द ओल्ड वुमन वेंट टू हर डॉटर्स होम, फिर वो अपने लड़की के घर गई। हर डॉटर वॉज प्रिपेयरिंग अ पम्पकिन टू कुक, उसने एक बड़ा सा पम्पकिन बनाया खाने के लिए। द वुमन सेड, माई डॉटर, द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वॉन्ट टू ईट मी, ये जो जंगल के प्राणी है, टाइगर, लॉयन, वुल्फ, ये मुझको खाना चाहते हैं। द डॉटर सेड, आई एम प्रिपेयरिंग अ पम्पकिन, मैंने एक पम्पकिन तैयार किया है, बट वी विल नॉट ईट इट, वी कैन यूज़ इट टू कवर यू, तो वो हम नहीं खाएंगे, वो तुझको कवर करने के लिए होगा। आफ्टर अ हैप्पी टाइम विथ हर डॉटर, फिर वो अपने डॉटर के संग अच्छा वक्त बिताया उसने। द ओल्ड वुमन सेड, इट वॉज टाइम टू गो होम, तो वो बूढ़ी औरत बोली कि मैं अब मेरे घर जाना चाहती हूँ, घर जाने का टाइम हो गया। द डॉटर पुट द पम्पकिन ओवर हर मदर एंड सेड, नाउ यू कैन गो होम, तो उस डॉटर ने, उस लड़की ने क्या किया, उसकी मदर के मतलब वो जो बूढ़ी औरत थी उसको उस पम्पकिन से ढक लिया, पम्पकिन से ढक लिया और फिर बोली जा। शी वॉकड एंड सॉ द टाइगर, पहले टाइगर ने देखा। द टाइगर से, टेल मी, डिड यू सी एन ओल्ड वुमन? पम्पकिन सेड, नो, तो उसने वो पम्पकिन जाते हुए देखा तो उस पम्पकिन से ही पूछ लिया, टेल मी, मुझको बता, डिड यू सी एन ओल्ड वुमन, तूने बूढ़ी औरत देखी? तो पम्पकिन सेड, नो, मैंने नहीं देखी। द टाइगर सेड, ओके गुड बाय, ठीक है जा। शी वॉकड एंड सॉ द लॉयन, द लॉयन सेड, डिड यू सी एन ओल्ड वुमन? लॉयन ने भी वही प्रश्न किया। द पम्पकिन सेड, नो, पम्पकिन ने वही जवाब दिया, नहीं देखी। शी वॉकड एंड सॉ द वुल्फ सेड, डिड यू सी एन ओल्ड वुमन? फिर वुल्फ ने और पूछा कि पम्पकिन, तूने ओल्ड लेडी देखी क्या, ओल्ड वुमन देखी क्या? द पम्पकिन सेड, नो, पम्पकिन ने फिर बोला नो, एंड हरी टू हर हाउस, और वो जाने के लिए तैयार हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमन गॉट टू हर हाउस, जब वो अपने घर पे गई, शी टुक ऑफ द पम्पकिन एंड एट इट, उसने वो पम्पकिन निकाला और उसको खाया। दिस इज हाउ द ओल्ड वुमन सॉ हर डॉटर एंड डिडंट बिकम डिनर। तो ऐसे ये ओल्ड वुमन जो थी उसने अपनी डॉटर से भी मिली और किसी प्राणी का डिनर भी नहीं बनी। तो ये स्टोरी इंग्लिश में करके दी है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट का क्वेश्चन 6th, डिस्कस एंड राइट ब्रीफली, डिस्कस करो और शॉर्ट में लिखो। पहला है, व्हाट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट, अगर आपको रास्ते में कुछ मिला तो आप क्या करेंगे? आंसर, इफ आई फाइंड एनीथिंग इन द फॉरेस्ट, इन द स्ट्रीट, इफ आई फाइंड एनीथिंग इन द स्ट्रीट, अगर हमको रास्ते में कुछ मिला, आई वुड थिंक केयरफुली बिफोर आई टच इट, मैं उससे टच करने से पहले उसको केयरफुली, मतलब
केयरफुली देखूंगा उसको, बिकॉज इट माइट बी डेंजरस टू टच, क्योंकि उसको टच करना डेंजरस भी हो सकता है। लिफ्ट एन अननोन थिंग, और जो भी ऐसे रास्ते पे पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कभी कभार उसमें बम भी हो सकता है, तो मैं बहुत केयरफुली देखूंगा उसको, टच नहीं करूंगा, उठाऊंगा भी नहीं। सो आई वॉन्ट टच इट दो इट इज़ अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल। आई विल एडवाइज अदर टू रेजिस्ट टेम्पटेशन। कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएबल होगा तो भी मैं टच नहीं करूँगा। आई विल एडवाइस अदर, बाकी अगर लोग वहाँ हैं तो उनको भी करूँगा कि आप भी उसको टच मत करें। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कुड हैव हैपन्ड व्हेन द ओल्ड वुमन सेड टेक इट। जब वो टीनी टाइनी वुमन जो थी वो बोली टेक इट, वो बोल रहा था ना गिव मी माई बोन, तो वो बोली टेक इट, तो क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर है द बोन मस्ट हैव कम आउट ऑफ द टीनी टाइनी कपबोर्ड। वो अपने आप कब्बर से वो टीनी टाइनी बोन जो था वो बाहर आया होगा। एंड मस्ट हैव फ्लोन टू द ग्रेव, और जहाँ वो रखा था ग्रेव पे था ना, तो वहाँ ग्रेव के पास वो भाग गया होगा। तो ये अपना इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ द लेसन टीनी टाइनी इज फिनिश्ड। थैंक यू।